guys, welcome back to my YouTube channel Mathematics with G Bajaj. Today we are going to start with assignment of chapter 1 number system of class 9. As CBSE has changed its pattern again, and this time in this pattern MCQs, 2 marker, 3 marker, case studies and 5 marker questions will be there in the question paper. So this assignment is as per the same pattern. So first of all we will be doing MCQs, then 2 marker question, then 3 marker question, case studies and then 5 marker questions. So let's begin with assignment chapter 1 MCQs. So here is the first MCQ of chapter 1. Square root 9 is an example of square root 9. Let me solve it. This is 3 into 3. 3 is a 9. So 3 is out, so 3 is a rational number. Everybody knows about it. Next we have 3 root 6 plus 4 root 6. It is equal to 3 root 6 plus 4 root 6. May I write root 6 as common? 3 plus 4 in the bracket, that means 7 root 6. अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता है 2 होता है और यहाँ रूट 6 होता है, देन वी कैन नॉट ऐड देम अप. उस टाइम में हमें इनको रैशनलाइजेशन या किसी और वे से सॉल्व करना पड़ेगा. लेकिन इफ़ देर इज सेम नंबर रूट 6 देन ओनली वी कैन ऐड देम अप और सब्ट्रैक्ट देम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन. इनको सॉल्व करके वी हैव टू टेल दैम एक्स क्यूब के बराबर कौन सा नंबर आएगा. राइट. सो उसके लिए let's solve them. x raised to power 6 minus x cube. We cannot solve them क्योंकि इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है. They are unlike terms, so we cannot solve it. Next we have x raised to power 6 into x raised to power 3. Base is same, so we are going to add the powers. X raised to power 9, but it is not equal to x cube. So let's try the next one. X raised to power 6 means how many times x is multiplying itself? 6 times. 1 2 3 4 5 and 6 divided by x cube. So we got this with this, this with this, this with this. We are left with x raised to power 3. So this is equivalent to this number. That means our answer is C part. Also we can do this way. As the base is same, we can subtract the parts and we get the same answer. Because here the division is being given. There's no need to solve the other one because only one will be the answer out of the given 4 options. Next we have the number obtained on rationalizing the denominator of 1 over root 7 minus 2. So let's start it. To rationalize, what we have to do is, जो भी number यहाँ पे given है, we are going to multiply with the same number with opposite sign. We are using the conjugate pair of it. So 1 into root 7 plus 2. 1 into some number means same number as it is. Next a minus b into a plus b. That will give us a square minus b square. Root 7 plus 2. This becomes 7 minus 4. 2 2s are 4. So root 7 plus 2 over 3. So we have first option like this. This is the first option, root 7 plus 2 over 3, matching with our answer. We have the next question. The decimal representation of rational number is. rational number की जो decimal representation है, या तो वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, या फिर वो अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो क्या होगी, रिपीट होगी. जैसे इफ़ आई हैव 1/2 एक रैशनल नंबर है. इफ़ आई सॉल्व इट आई विल बी गेटिंग 0.5. दिस हैज़ टर्मिनेटेड. ये फिनिश हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए ये टर्मिनेट हो गई. 1/3 ये भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन इफ़ आई सॉल्व इट आई विल बी गेटिंग 0.3, 0.3, 0.3. इट इज़ नॉट गेटिंग फिनिश्ड. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, इसलिए वी विल राइट इट डाउन दिस वे. सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर ईदर टर्मिनेटिंग और recurring or repeating. So either terminating or repeating.
Here is the next question. The sixth question is the square root of which number is rational? And the options are 7, 1.96, 0.004, 13. हमें क्या चेक करना है कि किसके स्क्वायर रूट का आंसर रैशनल नंबर होगा. अभी सबको पता है दैट रूट 7 इट इज़ एन इम्परफेक्ट नंबर जो स्क्वायर रूट से सॉर्ट आउट नहीं होगा. इसकी एक्सपेंशन क्या होगी? इर्रेशनल नंबर वाली होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन रिपीटिंग होगी. अभी 1.96 है. इफ़ आई सॉल्व इट यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आई विल बी गेटिंग 1.4, 1.4. तो ये एक पेयर है एंड वी कैन टेक इट आउट, दैट विल गिव अस 1.4. एंड इफ़ आई हैव टू सॉल्व इट फर्दर, 14/10 दैट मीन्स 7/5 विच इज़ अ रैशनल नंबर. हमारा क्वेश्चन भी यही था कि कौन से नंबर्स का स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट किया जाए और रैशनल नंबर आए. तो 7/5 आई गॉट फ्रॉम दिस आंसर. नेक्स्ट 0.004 है. इफ़ आई सॉल्व, ये 4 नंबर्स ही नहीं है तो उनका बनेगा ही नहीं. इसी तरह से ये 13 स्क्वायर रूट 13 इम्परफेक्ट है, इसलिए ये भी सॉर्ट आउट नहीं होगा. एंड आवर आंसर इज 1.96. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. The number 1.10, 100, 100, 1 4 times 0, 1 and so on is. हमें बताना है कि this number is of which category? Natural number, whole number, rational number and irrational number. So everybody knows that if a number's decimal expansion is non-terminating, if it repeats, अगर ये repeat होती है तो ये rational number की decimal expansion है. If it doesn't repeat, अगर ये अपने आप में रिपीट नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग है, देन इट विल बी इर्रेशनल नंबर. तो यहाँ पे ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये एक पैटर्न है. नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, इसलिए दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर. सो आंसर इज एन इर्रेशनल नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. √5 plus √7 whole square. So let's solve it. A plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. This is a and this is b. A square plus b square plus 2ab. So let's solve it. √5 square. √5 into √5 is 5. √7 into √7 is 7. 2 एज इट इज़. ये सेम स्क्वायर रूट्स हैं, इसलिए ये नंबर्स सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे. मल्टीप्लाई 5 into 7 is 35. सो वी आर लेफ्ट विथ 12 plus 2 √35. एंड द एग्जैक्ट आंसर इज हियर विद अस. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9. 10 raised to power 3/4 is equal to. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट. इसको प्राइम फैक्टर्स करेंगे दिस वे एंड these things we are learning from class 6. So 2 raised to power how many? 2 raised to power 4 and the rest I am writing as it is, same to same लिख दिया है. 2 raised to power 4, एक ही बेस की अलग अलग पार्ट्स हैं, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दोज पार्ट्स एंड वी आर लेफ्ट विथ 2 क्यूब. और वी कैन राइट इट 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 times 8 is the correct answer. Next question is the product of a rational and an irrational number is. See, if it is a rational number, take any number 2. Take any irrational number. Let's take √3. So you can multiply them and you can get what is the answer. This is again an irrational number. So whenever you multiply rational number with an irrational number, you will be getting always an irrational number. So here up to here we have done 10 MCQs of chapter 1. So next we will begin with 2 marker questions. So here is the next question. 2 marker question is write an irrational number between 2/5 and 3/7. So first of all let's convert it into decimal so that we can write down decimal expansions of irrational number in between the number 2/5. So
सो इट कैन बी रिटन एज, आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं और सीधा टेबल से भी पता लग जाएगा। 2 4 5 4s are 20. So we got this. Another one is 3 by 7. Again we are going to divide it. 3 7 7 4s are 28 here. Next 0. Usually we divide up to one decimal place only, but here the decimal place is same. Here it is 4, here also it is 4. So I have taken the another one. इसके बाद तो ये finish ही हो गया था, so there is no need, but यहाँ पे हमें करना पड़ेगा. So that means I need to write down a decimal expansion between these two numbers. 0.4 से लेकर 0.42 के बीच के नंबर्स हमें irrational नंबर के बीच में लिखना था. So irrational number, what we are going to write is the pattern. We will write the same number as it is. Rest of the pattern जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 में, see this was the pattern. So for any irrational number we will write down the front number, यही नंबर लिख के इसके बाद हम यही पैटर्न स्टार्ट करने वाले हैं. यू कैन राइट डाउन एनीथिंग, कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट आपने लिखना है एंड नॉन रिपीटिंग लिखना है, तो वो अपने आप ही एक इरेशनल नंबर बन जाएगा. आई एम राइटिंग द सेम पैटर्न, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 times 0 and so on. So one of the number I got this one, and if I have to write down the another one, I'll write 0.4. 2 से पहले वाला लिखना है, 2 के बाद वाला नहीं लिखना है. सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 5 1 5 5 1 5 5. You can write down any of the number of your choice, but it should not be terminating, it should not be repeating. That's it. So this was the second question. Write an irrational number बोला था, हमने 2 numbers लिख लिए हैं यहाँ पे. Write an irrational number between 2 by 5 and 3 by 7. So we have written 2 irrational numbers in between. Next question is write the decimal expansion of 2 by 11 and state the kind of decimal expansion. पहले हमें लॉन्ग डिवीजन से 2 by 11 को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 11 जो है वो 2 raised to power m इंटू 5 raised to power n की रेंज में नहीं आता है, तो इसको लॉन्ग डिवीजन से ही करना पड़ेगा. सो लेट्स सॉल्व इट. 2 by 11. सो डेसिमल एक्सपेंशन, ये छोटी क्लासेस में करके आए हैं आप लोग सभी. So you can see the number is repeating. Next, if I take 0 again, I'll be getting same numbers. So it means the decimal expansion of this is 0.18 18 18 18 and so on. That means the number 18 is getting repeated. So ये non terminating है, and repeating है, repeating और recurring. तो ये किसकी एक्सपेंशन होती है? Therefore it is the decimal expansion of rational number. It is a rational number. ये रैशनल नंबर ही होना चाहिए था, ये लिखा ही पी ओवर क्यू फॉर्म में है, बट हमें क्या बताना था कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है. इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, या इसका आंसर टर्मिनेटिंग हो सकता था, बट क्योंकि यहाँ पे 11 है, सो इसलिए दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, विच इज़ अ रैशनल नंबर. लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Third one, show that 1428571 this is equal to 1 by 7. So basically अगर हम ध्यान से देखें 1428557 के बाद सेम डिजिट वापस से रिपीट हो रहे हैं. So let's solve it. Let's solve it. Show that this number is equal to 1 by 7.
So let this number be x. 0.142857, वापस से सेम नंबर 142.857 and it will be repeated again. Let it be x. So now how many digits are coming under the bar? Basically 1 2 3 4 5 6 digits हैं जो रिपीट हो रहे हैं. दैट मीन्स दे आर कमिंग अंडर द बार. सो हम क्या करते हैं कि जितने भी नंबर डेसिमल के बाद अंडर द बार आ रहे हैं हम उतने ही ज़ीरोज़ 1 के साथ लगाकर मल्टीप्लाई करते हैं. तो मैं इसको 1 नंबर ले रही हूँ और 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 डालकर 1 2 3 4 5 6 से. 1 2 3 4 5 6 multiplying 1 into 10 1 into this gives, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस बिकम्स 1 2 3 4 5 6 x and here it goes forwarded to these many digits, यानी 142.857 तक ये क्या हो गया है, फॉरवर्ड हो गया है. एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट वी आर राइटिंग एज इट इज़. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट आउट ऑफ 2. हम फर्स्ट वाले को क्या करने वाले, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं. तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और सेम आई एम राइटिंग एज इट इज़. दिस फर्स्ट आई हैव रिटन अगेन सो दैट आई कैन सब्ट्रैक्ट दैम इजीली. सो ये 1 है, इसको हमने इसको माइनस करना है. एंड हेयर इट इज़ दिस ऑल ओवर गेट्स कैंसल बिकॉज एक के नीचे एक सेम ही डिजिट्स आ रहे हैं. तो ये सारा का सारा ज़ीरो हुआ डेसिमल के बाद वाला, और इससे पहले इस डिजिट में से ज़ीरो माइनस हो रहा है. तो व्हाट वी आर लेफ्ट विल बी गेटिंग 6 × 9x इक्वल्स टू 142.857. ये सारा राइट साइड का सेम टू सेम है. इसने इसके साथ सीधा ही सब्ट्रैक्ट हो जाना है. 7 के नीचे 7 है, 5 के नीचे 5 एंड सो ऑन. दिस विल गेट 0. एंड लेफ्ट साइड में पूरे नंबर के से हमने 0 ही तो माइनस करना है. तो वी विल बी लेफ्ट विद दिस नंबर ओनली. आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो ये क्या बनेगा, इस नंबर को पूरे को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल बी गेटिंग दिस. सो इट मीन्स कि ये आपको आंसर क्या देने वाला है, x = 1/7. एंड हाउ डू आई गेट टू नो कि ये 7 से ही आएगा, बिकॉज हमें जो प्रूव करना था वो 1/7 था. इट मीन्स कि इस नंबर को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ और ये आंसर आ जाता है तो 1/7 आंसर अपने आप आ जाएगा. सो दिस इज़ हाउ वी हैव प्रूव्ड दिस टू बी इक्वल्स टू 1/7. नेक्स्ट इज 3 marker questions. Rationalize the denominator. We have been given a number. उसमें हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. सो हाउ कैन वी सॉल्व इट. 3 + √2 over 4√2 है. नाउ यू कैन सी 4 डजंट कम अंडर द रूट. 4 रूट के अंदर नहीं आ रहा है. तो जो नंबर हमारा रूट के अंदर आ रहा है हम उसी से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमारा बेसिक पर्पस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि हमने नीचे कुछ भी इरेशनल में नहीं रहने देना है डिनोमिनेटर में. तो अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करती हूँ आई विल बी गेटिंग सिंपल 2 नंबर विच विल बी अ रैशनल नंबर. सो आई हैव चूजन ओनली √2. 4 लेने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ. सो लेट्स मल्टीप्लाई 3 + 2 into √2 over 4 into √2 into √2. So you can see 3 into √2 is 3√2 plus √2 into √2 is 2. 4 into √2 into √2 is 2. So what we are left with, 3√2 plus 2. 3√2 plus 2 over 8. So the final answer is 3√2 plus 2 over 8. And hence we have rationalized the denominator. Denominator में कुछ भी irrational नहीं है. And the next question is simplify 4√5 minus 3√2 into 3√5 plus 5√2. So simple product है, कोई आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लग रही है क्योंकि ये 4√5 है तो वो 3√5 है.
ये 3√2 है वो 5√2 है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी वगैरह यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। 4√5 पहले पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3√5 प्लस 5√2 के साथ, एंड देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद द होल ब्रैकेट। साइन इज सेम जो भी यहाँ पे है, 3√2 3√5 प्लस 5√2। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1 टू ऑल द टर्म्स इन द ब्रैकेट। 4√5 इंटू 3√5, 4 3 ज़ा 12, √5 इंटू √5 इज़ 5, 12 5 ज़ा 60 हुआ, प्लस अब 4√5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5√2 से। बाहर वाले हमने बाहर मल्टीप्लाई करने हैं, 4 5 ज़ा 20, रूट वाले रूट के अंदर, √5 इंटू √2 इज़ √10। नेक्स्ट बाहर माइनस साइन है, अंदर प्लस है, तो प्लस माइनस इज माइनस, 3 3 ज़ा 9, √2 इंटू √5 इज √10। नेक्स्ट अब इस नंबर को हमने इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है। बाहर है 3, यहाँ पे भी 5 है, 3 5 ज़ा 15। अब प्लस माइनस विल गिव मी माइनस ओनली, 3 5 ज़ा 15 इंटू √2 इंटू √2 इज 2। So what is the answer we got? 15 2 ज़ा 30, ये 60 है, ये माइनस 30 हुआ यहाँ पे, प्लस 20√10 माइनस 9√10, 20 में से 9 दोनों ही √10 वाले हैं, तो मैंने √10 बाहर कॉमन ले लिया है, 20 माइनस 9 मैंने एक साथ लिखा है। सो आई गॉट 60 माइनस 30 इज़ 30, प्लस 20 माइनस 9 इज़ 11 √10। So this is the simplification of this question. Simply multiply ही किया है दोनों brackets को 1 by 1, one member with the whole bracket, then second member with the whole bracket. And the next 3 marker question is, find value of 1 by 2 raised to power 5 minus 2 by 3 raised to power 4 into 3 by 5 raised to power -1, or we can consider it as inverse. Let's solve this question. Question number 3, 1 by 2 raised to power 5 into minus 2 by 3 raised to power 4, 3 by 5 inverse. So let's solve it. 1 by 2 raised to power 5, आप इसको ओपन अप करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और अनदर वेज कि आप जितने भी जो 2 की पावर है, इधर 2 की पावर है, ये डिवाइड में है, वो मल्टीप्लाई में है, आप पार्ट्स को माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यू कैन डू दिस वे ऑल्सो। 3 इंटू 3 इंटू 3, जितनी पावर दी है उतनी बार हमने इसको ओपन अप किया है, एंड इन्वर्स मीन्स कि हमने इसका रेसिप्रोकल लिखना है। 5 by 3, इसकी पावर -1 है, इसलिए हमने एक बार ही इसको रेसिप्रोकल किया है। अगर इसकी पावर 2 होती, 3 होती, तो उतनी बार हम इसको रेसिप्रोकल में लिख लेते हैं। सो लेट्स सॉल्व इट नाउ। दिस 2 1 2 3 4 1 2 3 4 गेट्स कैंसल्ड, एंड व्हाट आई एम लेफ्ट विद नथिंग एल्स। इसमें और कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है, कुछ भी एक दूसरे के साथ कट नहीं रहा है और भी, तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये 1 है, 1 इंटू 5 इज़ 5, विद साइन देखिए 1 2 3 4, 4 बार माइनस का साइन है, यानी वी आर गेटिंग प्लस। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, ओवर नीचे 1 1 2 was left here, 1 2 was left here, and 4 times 3 1 3 is there. So let's multiply all these numbers. 3 3 is 9, 9 3 is 27, 3 is 81, 3 is 243 into 2. 243 into 2 will give us 486. So we got 486 after multiplying 2 into 4 times 3 and 1 time 3 here. So we got the answer of this question as 5/486. Next we have 4 marker case studies. So let's see.
First case study, Mr. Roy, a mathematics teacher, explained some key points of chapter 1 of class 9 students. Some are given here. There are infinite rational numbers between any two rational numbers. Rationalization of the denominator, a number is irrational if its decimal form, non-terminating and non-recurring. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो टीचर ने अपने बच्चों को बताया. ऑन द बेसिस ऑफ अबव की पॉइंट्स आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 + √3. केस स्टडी. And we have to find, first question is we have to find out the reciprocal of 2 + √3. 2 + √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? दैट इज 1/, रेसिप्रोकल लिख देते हैं इसको. रेसिप्रोकल इज 1/2 + √3. बट वी आर नॉट गोइंग टू लीव लाइक दिस ओनली, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं रहने देते हैं और यहाँ पे √3 दिख रहा है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इसको रैशनलाइज करने वाले हैं. वे आउट सेम है. हमने 2 + √3 लिया है तो 2 - √3 लेंगे सो दैट वी मेक इट रैशनल. सो 2 - √3 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ. वी गॉट द सेम नंबर एज इट इज. a + b × a - b इज a² - b². सो द आंसर इज 2 - √3, 4 - 3. सो द रेसिप्रोकल इज 2 - √3. 4 - 3 is 1. We can write this way only. So this is the reciprocal of 2 + √3. Next part. Second part is write any one rational number between √2 and √3. √2 और √3 के बीच में एक रैशनल नंबर आपको लिखना है. So how can we write down rational number between √2 and √3. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें √2 की एक्सपेंशन पता होनी चाहिए, √3 की एक्सपेंशन पता होनी चाहिए. तो उसके बेसिस पे हम ये लिखेंगे. √2 जो है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन 1.41 है एंड √3 की डेसिमल एक्सपेंशन 1.732 है. और भी है इसकी, लेकिन हमने सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखा है क्योंकि ये इरेशनल नंबर्स है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये फिनिश ही नहीं होने वाले. तो वी विल बी यूजिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ओनली. मे बी 1 डेसिमल प्लेस तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. इनके बीच में रैशनल नंबर्स आपने लिखने हैं. बेसिकली 1.41 से लेकर 1.73 के बीच में आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं. जैसे आई एम राइटिंग 1.50. बाद में मैं इसको ओवर में कन्वर्ट करके इसको प्रॉपर p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँगी. यू कैन राइट एनी ऑफ नंबर ऑफ योर चॉइस, एनी नंबर ऑफ योर चॉइस. सो आई एम राइटिंग दिस वन. दैट शुड लाई बिटवीन 1.41 से 1.73 के बीच में ही होने चाहिए. सो ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में हैं. दैट मीन्स वी हैव रिटन 15/10. 0 तो वैसे ही कट जाएगी. अगर आप लिखना चाहो तो ये देखिए ये लिख कट जाएगी. नेक्स्ट नंबर इज़ दिस वन. सो बेसिकली ये 2 नंबर है. आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. ये 5 की टेबल पे मैं कट कर रही हूँ. सो आई एम लेफ्ट विथ 3/2 एंड दिस इज़ ऑन द टेबल ऑफ 2 अगेन 8 and 5, 8/5. So these are the rational numbers between these 2 numbers and this can vary because I have chosen these 2 numbers. उसके बेसिस पे मैंने ये 2 rational numbers लिए हैं. कोई कुछ ले सकता है. 1.42/100, 142/100 हो जाएगा, 143/100 हो जाएगा. तो देयर आर मेनी नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स. इन फैक्ट आप इसमें से कोई भी 2 नंबर रैशनल नंबर्स जो p/q की फॉर्म में हों वो आपने इसमें लिखने हैं. सो आई हैव रिटन दीज 2 नंबर्स विच आर रैशनल बिटवीन दीज 2 इरेशनल नंबर्स. केस स्टडी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट 3 + √7 into 3 - √7. So let's do that also. So this is the third question which we are going to solve for the case studies.
3 प्लस रूट 7, 3 माइनस रूट 7. अभी हमने डिनोमिनेटर्स में भी ये किया है. सो वी कैन सी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. जब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो ऑलवेज हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही बनता है. सो ये a यहाँ पे ये हो गया, b यहाँ पे ये है. सो लेट्स सॉल्व इट. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 हुआ, रूट 7 इंटू रूट 7 7 हुआ. सो दिस इज 2 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3 of case study. Next is 5 marker questions, very important. There are 6 questions we have taken and we have chosen almost all category type of questions over here. So let's see. पहला जो क्वेश्चन है वो है find the value of 0.6 not raised to power 0 है minus point inverse over 3 over 8 inverse 3 by 2 raised to power 3 plus minus 1 by 3 inverse. So I am writing this question and I'll let you know. So this is the first question. Find the value of this. जिस भी नंबर की पावर 0 हो या नॉट हो वो कितना बन जाएगा? That is always 1. Laws of exponents, if we use laws of exponents, उसमें ये आता है कि जिस भी बेस की पावर नॉट है तो वो that will be equals to 1. So here we are using that thing only. And one more, if any base is having negative power तो वो कैसे पॉजिटिव होगी? by taking its reciprocal. if it is in the form of a over b और वो नेगेटिव है और माइनस में के साथ उसकी पावर 2 है, so we will be taking the reciprocal with positive power. So these are some of the laws of exponents which we are going to use in this questions to solve this question. अब 0.6 की पावर 0 है, that means this will become 1 as per the law of the exponent. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ, इन्वर्स फंक्शन में बाद में सॉल्व करूँगी. 0.1 है, 0.1 की मतलब वी कैन राइट डाउन 1/10. अभी तक मैंने इन्वर्स की पावर को यूज़ नहीं किया है, सिर्फ डेसिमल को सॉल्व किया है. सो 3/8 इन्वर्स है यानी -1 है उसकी पावर, तो हम लिखेंगे 8/3 रेज़्ड टू पावर 1. नेक्स्ट इज़ ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 3/2 रेज़्ड टू पावर 3 एज इट इज़, इसमें कुछ हमने नहीं किया. नेक्स्ट प्लस माइनस ये इन्वर्स में है, -1 है इसकी पावर, तो हम इसको 3/1 लिख सकते हैं. ओवर 1 हम लिखते ही नहीं है, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग हियर. सो बेसिकली हमने सारा इन्वर्स फंक्शन सॉर्ट आउट कर दिया है. एक फर्स्ट वाला पार्ट रह गया है, लेट मी सॉल्व दैट ऑल्सो. 1/10 इन्वर्स है तो ये बन जाएगा 1/10/1. पावर 1 है तो आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज 10 रेज़्ड टू पावर 1 मीन्स 10 itself. हियर 8/3 into ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो आई एम राइटिंग दिस इज फॉर द 3 times. वी हैव टू राइट डाउन प्लस माइनस माइनस एंड 3 एज इट इज. सो 3, 1 of the 3 cancel, 2 2s are 4 2s are 8. This 8 gets cancelled. So basically we are left with 1 minus 10 over 3 3s are 9 minus 3, and C, the answer is 1 minus 10 is -9 over 9 minus 3 is 6. So the answer is -3/2. इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वो क्वेश्चन था एंड द आंसर इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ -3/2. दैट्स इट. And here comes the next question. Represent square root 17 on number line. We have to represent square root 17 on number line. So how can we do this? First of all, let me write it down. 17 can be written as 16 plus 1. That अगर मुझे इसको स्क्वायर्स में लिखना है तो स्क्वायर्ड फॉर्म इज़ 17 is the square of root 17 and 16 is the square of 4. 1 is the square of 1 itself. So, and let me compare it with Pythagoras theorem that says hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. Hypotenuse इसके साथ कंपेयर करें तो स्क्वायर्स कट गया एंड आई एम लेफ्ट विथ स्क्वायर रूट 17 यूनिट्स. बेस मेरे पास आ जाएगा बेस स्क्वायर 4 स्क्वायर, दैट इज़ 4 ओनली, 4 यूनिट्स. एंड परपेंडिकुलर कैन बी टेकन एज
1 यूनिट। जब भी ब्रेक करें इसको +1 में ही करेंगे तो वो बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा कि हर पर परपेंडिकुलर 1 ही आ रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन +1 से ही हो जाएंगे एंड इट विल गिव अस ईजियर। कोई कंपल्शन तो नहीं है बट ईजी आंसर इससे आपका आ जाएगा। सो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये तो पता लग ही गया है कि हमने कौन सी यूनिट्स बेस के लिए लेनी है और कौन सी परपेंडिकुलर के लिए लेनी है। हाइपोटेन्यूज की अपने आप इनके बेसिस पे आएगी। सो ये स्केल में दीज आर सेंटीमीटर्स एंड दीज आर इंचेस। आई एम यूजिंग इंचेस वाला साइड। उसका रीज़न ये है कि इंचेस में थोड़ा ज़्यादा होता है और ये नीट आपको दिख जाएगा, वहाँ सेंटीमीटर्स तो मेंशन नहीं है। सो वी कैन यूज़ यूनिट्स एज पर आर कन्वीनियंस। तो मुझे बेस 4 यूनिट्स लेना है। सो आई एम यूजिंग, ये देखिए 1 यहाँ पे है, 1 2 3 4 यूनिट्स मैंने यहाँ से यहाँ तक ले ली है। सेंटीमीटर्स में जब हम बनाते हैं तो वो बहुत छोटा सा बनता है तो इतना अच्छे से विजिबल ही नहीं हो पाता है। सो आई यूज़ टू टेक दिस। बस मेंशन ज़रूर कीजिए कि आपने क्या स्केल क्या लिया है, वो क्या आपको स्केल मेंशन करना होगा। दैट इज़ इफ़ आई एम टेकिंग स्केल एज 1 यूनिट एज 1 यूनिट आई हैव टेकन एज 1 इंच। okay, I have taken 4 units as base. Base has been taken. Now I have to take perpendicular. Perpendicular means I have to draw 90-degree angle first of all. So let's draw 90 degree here. So ये 90 degree I am drawing here. 60 की आर्क एंड देन 120 की आर्क और उसके बाद इन दोनों की बाइसेक्शन वी विल बी गेटिंग 90 डिग्री। Let's join the point, initial point with the so this is 90 degree angle. आगे what we have to do is 1 unit we require. मैंने 1 inch को 1 unit लिया है. So I'll keep my scale that compass here and let's see, this is 1 unit. Put your compass here and by chance ये इसी के ऊपर आ गई है. It can be इससे नीचे भी हो सकती है, इसके ऊपर भी हो सकती है. It can be down this mount and up as well. तो मेरा जो पॉइंट है 1 यूनिट 1 है वो इसी के ऊपर आ गया है. सो दिस पॉइंट इज़ माइन परपेंडिकुलर वाला पॉइंट है ये मेरा. तो आई एम पॉइंटिंग इट आउट हियर. दिस इज़ O A एंड माई B पॉइंट इज़ दिस वन. इसको आपने मिला देना है. सो ओ बी हमारे पास क्या आ चुका है. अगर ये बेस इतना है और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 यूनिट है तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज 100% √17 बनेगा. ठीक है, तो ये हमारे पास √17 आ चुका है. लेकिन स्टिल ये अभी भी हवा में है, ये नंबर लाइन पे है ही नहीं है. जबकि मुझे जो रिप्रेजेंट करना है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इसको एक्सपैंड कर रही हूँ सो दैट मैं नंबर लाइन पे इसको शो कर सकूँ. मैंने इसको एक्सपैंड किया है. अभी हम क्या करेंगे, हम O पे अपना कंपास रखेंगे और B तक इसको मेजर करेंगे. यहाँ तक O पे रख के O पर रखकर आपने B तक मेजर करना है. सी हियर दिस वे. और उसके बाद आपने आर्क लगा देनी है ऐसे. इस तरह से आपने आर्क लगा देनी है. तो ये क्या शो करेगा, this point from up to here, this C point, I am right, this was A point and this is the point C we got now. So OC is √17. आप स्केल से भी मेजर करना चाहें तो √16 4 यूनिट होता है. √17 स्लाइटली उससे ज़्यादा होगा. तो यू कैन सी 4 यूनिट यहाँ है और ये स्लाइटली उससे थोड़ा सा ज़्यादा है. एंड दिस इज़ हाउ वी हैव ड्रॉन √17 ऑन नंबर लाइन.
So the next question is find x if 2 raised to power x minus 7 into 5 raised to power x minus 4 is 1250. Let's start it. So this is the third question. First of all what we are going to do is हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करेंगे 1250 को. Let's see 1250 5 के टेबल पे कर रही हूँ अभी. So basically we got 4 times 5 and 1 time 2. 2 raised to power x minus 7 into 5 raised to power x minus 4 is equal to 2 raised to power 1 and 5 raised to power 4. ये जो हमने फैक्टराइज किया है मैंने वही इसको लिखा है. Now what we have to do, we have to compare the parts of 2 and 5 separately. Comparing the parts of 2 and 5 separately. अब 2 की पार्ट्स जो हैं वो हमने अलग से ले लेनी है. 2 रेज टू पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1 एंड 5 की हमने अलग से ले लेनी है. 5 रेज टू पावर x माइनस 4 इक्वल टू 5 रेज टू पावर 4. सो बेस सेम है, पार्ट्स भी हम इक्वेट कर सकते हैं एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. ओ सॉरी ये 1 है क्योंकि हम पार्ट्स को इक्वेट कर रहे हैं. x माइनस 7 एंड पार इज़ 1 हियर. सो x कितना आएगा 1 प्लस 7 दैट इज़ 8. सेम हियर व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस, बेस सेम है, पार्ट्स क्या हो जाएंगी इक्वेट हो जाएंगी, इक्वल टू हम रख देंगे एंड x विल बी 8. ये आंसर सेम ही आएगा आपका. सो दिस इज हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज नेक्स्ट फाइंड a and b if 2 square root 5 plus root 3 over 2 root 5 minus root 3 plus 2 root 5 minus root 3 over 2 root 5 plus root 3 is equal to a plus root 15b. Let's solve it. So here is the question. इस क्वेश्चन को करने के 2 वे आउट हैं. फर्स्ट थिंग इज़ कि आप इसको अलग से रैशनलाइज करो, फिर इसको अलग से रैशनलाइज करो, दोनों को प्लस करो एंड देन यू कैन कंपेयर टू गेट a एंड b. वो मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है ये अलग हो, ये फ्रैक्शन हमारे पास अलग हो. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इसका न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका न्यूमरेटर है वो इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है. तो ये एक बहुत इजी वाला क्वेश्चन, इजीली सॉर्ट आउट होने वाला चीज़ है. तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, यानी कि हम नीचे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है. तो ऐसे केसेस में ये इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा. सो ईदर यू टेक द एलसीएम, तब भी वही आएगा, सेम चीज़ ही. और दूसरी चीज़, या इनको सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए. बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन मीन्स नीचे मल्टीप्लाई एंड ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये हर जगह नहीं लग सकता है. अगर ये सेम नहीं है, आई मीन प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, तभी हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं. अगर ये फ्रैक्शन ही अलग होता, ये फ्रैक्शन अलग हो जाता तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. उस केस में हम इसको रैशनलाइज अलग से करना था, इसको अलग से करना था, फिर प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन दिया गया होता हम वो करते हैं. अभी के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बेसिकली हम एलसीएम लेके ही सॉल्व कर रहे हैं. अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है, आप इसको एलसीएम लीजिए, यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग. आप एलसीएम के बाद इसको सॉल्व कीजिए, यू विल बी गेटिंग सेम थिंग. आपने इसको इसके साथ डिवाइड किया, ये कट गया, बचा तो फिर से वही. तो हम सीधा इसको क्या कह देते हैं कि बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन है. हमने सीधा ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बट एक्चुअल में हमने क्या किया होता है, हमने जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड हैं वही सॉल्व करके लिखे होते हैं, लेकिन आएगा आंसर सेम ही. सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मुझे 2 रूट 5 प्लस रूट 3 दोनों ही सेम थे, इसलिए इसका होल स्क्वायर हुआ. और यहाँ पे ये दोनों सेम थे, इसलिए इनका होल स्क्वायर हुआ. अब इसको ओपन अप कर रही हूँ मैं. a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
plus 2ab. This is done. Now next one is this one, a minus b whole square. A square plus b square minus 2ab minus 2ab. So let's further solve it. नीचे जो डिनोमिनेटर है वो है a plus b, a minus b into a plus b. a minus b into a plus b give us a square minus b square. So this is how we are going to solve it. Simplify कर रहे हैं अब आगे. a square यानी 2 2 ज़ा 4 into root 5 into root 5 is 5. 4 into 5 is 20. Root 3 into root 3 is 3 plus 2 2 ज़ा 4 square root 5 into square root 3. सेम स्क्वायर रूट है इसलिए 5 into 3 बीच में ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे 15. देन प्लस का साइन है. 2 2 ज़ा 4 into root 5 into root 5 is 4 into 5 20. रूट 3 का स्क्वायर यानी रूट 3 into root 3 is 3 माइनस 2 2 ज़ा 4 square root 5 into square root 3 is 15 over 2 to the 4 into 5 is 20 minus 3. So this is with plus sign 4 root 15 and this is with minus sign 4 root 15. So this gets cancelled and we are left with 20 plus 3 plus 20 plus 3. That is 23 plus 23 is 46 over 17. अभी यहाँ पे अगर मुझे कंपेयर करना है a प्लस रूट 15b के साथ तो आई हैव a वाला पार्ट बट b वाला पार्ट मेरे पास नहीं है. तो बट मुझे तो आंसर जो देना है वो दोनों फाइंड करके देना है कि फाइंड a एंड b. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इसके साथ 0 रूट 15 लिख रही हूँ सो दैट कि जब मैं कंपेयर करूँ इसको कंपेयरिंग विद जो इन्होंने दे रखा था, इन्होंने दिया था a प्लस रूट 15b, कंपेयरिंग विद a प्लस बी रूट 15. मैंने रूट 15 इंटू बी की जगह बी रूट 15 लिखा है. वन एंड द सेम थिंग. सो ए मेरे पास क्या आ गया है, ए इज़ 46 over 17 वेयर एस बी इज़ 0. रूट 15 हमने साइड्स पे छोड़ दिया, कट गया कह लो. बी इज़ हमारे पास 0 आ गया. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये जितने भी असाइनमेंट में दिए गए हैं ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, डिफरेंट बुक्स में से लिए गए हैं और हर टाइप के क्वेश्चन इसमें हमने कवर करने की कोशिश की है. सो लेट्स डू द नेक्स्ट वन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 ओवर 2 प्लस रूट 5 एंड y इज 2 प्लस रूट 5 ओवर 2 माइनस रूट 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. So let's do it. So first of all what we are going to do is x का रैशनलाइजेशन करना है, y को रैशनलाइज करना है, उसके बाद x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इसमें हम या तो x स्क्वायर करके आफ्टर फाइंडिंग द रैशनलाइजेशन x स्क्वायर करेंगे, आफ्टर फाइंडिंग रैशनलाइजेशन ऑफ y स्क्वायर करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वन ऑफ द वे इज़ दिस वन. दूसरा वे आउट ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. तो उसमें हम एक्स प्लस वाई करेंगे, एक्स माइनस वाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी कैन गेट आवर आंसर. तो दोनों वे आउट्स में हमें पहले एक्स और वाई को क्या करना है, रैशनलाइज ही करना है. सो लेट्स एक्स इज़ 2 माइनस रूट 5 ओवर 2 प्लस रूट 5 है. सो मैं इसको रैशनलाइज कर रही हूँ. 2 माइनस रूट 5 ओवर 2 माइनस रूट 5. जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है वैसे वाला नंबर ही ऊपर लिखना है विद ऑपोजिट साइन. सो 2 माइनस रूट 5 2 माइनस रूट 5 इट मीन्स कि इट हैज़ बिकम 2 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर वेर एज ए प्लस बी ए माइनस बी. सो ये बनता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो हियर आई गॉट a माइनस बी होल स्क्वायर एंड द फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर ये 2 2 ज़ा 4 माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 इज़ 5.
4 plus root 5 into root 5 is 5 minus 4 root 5 over 4 minus 5 is minus 1, that is 9 minus 4 root 5, और मे बी राइट minus 9 प्लस ये माइनस जो है ये माइनस मैं ऊपर ले गई हूँ, इस वाले नंबर के नीचे -1 था और ये -1 मैंने ऊपर ले लिया है, एंड व्हाट आई एम लेफ्ट विद नाउ -9 माइनस माइनस प्लस 4 रूट 5. दिस इज़ द आंसर फॉर x. ये x को रैशनलाइज कर दिया है. यू कैन सी डिनोमिनेटर में ओवर 1 है, यानी कि हमारे पास रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर हो गया है. अब हम क्या करने वाले हैं, हम दूसरी साइड भी सॉल्व करेंगे इसकी y के लिए. सो हियर इज़ y 2 प्लस रूट 5 ओवर 2 माइनस रूट 5. रैशनलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस में है, सेम नंबर्स विद प्लस साइन, और वी कैन से द कंजुगेट पेयर ऑफ ईच अदर. सो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है. सेम नंबर है 2 प्लस रूट 5 2 प्लस रूट 5 यानी a प्लस बी दैट विल गिव अस a प्लस बी होल स्क्वायर ओवर a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इसको ओपन कर रही हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab over 2 to the 4 minus root 5 into root 5 is 5. So this becomes 4 plus 5 plus 4 root 5 over minus 1. 9 plus 4 root 5, ये जो -1 है मैं इसको ऊपर ले गई हूँ न्यूमरेटर में ही और माइनस बाहर लगा दिया, एंड वी गोट -9 minus 4 root 5 as y. तो मेरे पास x और y की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं. सो आई गॉट बोथ द वैल्यूज़. x की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है, y की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है, एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि x का अलग से स्क्वायर कर दो, y का अलग से स्क्वायर कर दो और माइनस कर दो. दिस कैन बी डन. और अनदर वे आउट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी. तो हम इनको क्या करने वाले हैं, पहले x की वैल्यू लिख रही हूँ मैं यहाँ पे x, देन प्लस y दैट मीन्स कि नो साइन विल बी चेंज्ड, जैसा है वैसे ही लिख लेना है, कोई साइन हमने चेंज करना नहीं है. तो इतना पोर्शन मैंने अभी x लिखा है, प्लस y, इतना पोर्शन मैंने y लिखा है. अब सेकंड वाला है हमारे पास, फिर से x है, x मेरे पास है -9 प्लस 4 रूट 5, और आगे क्योंकि माइनस का साइन है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ माइनस लगाया और साथ में ब्रैकेट भी लगाई y की वैल्यूज़ लिखने के लिए. हमने y की वैल्यूज़ लिख दी है, और ये ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर माइनस का साइन है. सो यू कैन सी दिस इज़ प्लस 4 रूट 5 एंड दिस इज़ माइनस 4 रूट 5. दिस गेट्स कैंसल्ड. हमारे पास क्या बचा है, -9 दैट इज़ -18, एंड हियर इसको ओपन कर रहे हैं अभी, -9 प्लस 4 रूट 5 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 रूट 5. सो यहाँ पे ये 9 प्लस में, ये माइनस में, दिस गेट्स कैंसल्ड. -18 इंटू 8 4 रूट 5 प्लस 4 रूट 5 इज़ 8 रूट 5, एंड लेट्स मल्टीप्लाई इट. 144 root 5 is the answer for this question. Again, this is very important question from chapter 1. Find the value of 1.36, 36, 36 and so on, and 0.4323232 and so on. So I am taking it to be x and it to be y. That means x is 1.363636 and so on, whereas y is 0.43232 एंड सो ऑन. सो हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, एंड देन इफ़ वी हैव बीन टोल्ड टू ऐड देम अप वी विल ऐड देम अप, और अगर माइनस करना है जो भी कहा गया ऑपरेशन में वी आर गोइंग टू डू दैट. हियर x इज़ दिस, लेट्स स्टार्ट विद x इज़ 1.363636. इसको हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 36 बार है बेसिकली. तो अंडर द बार जितने भी डिजिट होते हैं हम क्या करते हैं, उतने ही ज़ीरोज़ लगाते हैं 1 के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो लेट इट बी 1
1 इंटू, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट ही रिपीट हो रहे हैं, तो 1 इंटू 100 गिव्स, दिस बिकम्स 100x, और ये 2 डिजिट फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया है इसको 100 से. सो वी आर लेफ्ट विद दिस, लेट इट बी 2 नंबर. अब मैं इसमें से 1 वाले नंबर को माइनस कर दूंगी. पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, 36 36 एंड सो ऑन. सब्ट्रैक्शन, 100 minus 1x is 99x, and this 3636 all will get 0, and here 135. So basically I got x as 135 over 99. Similarly we will be solving for y. Y is 0.43232. Under the bar it means we have only 2 digit because 2 numbers are getting repeated. डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, इट डजेंट मीन कि हम 3 डिजिट है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 जीरो से 1 के बाद. नो, वी ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय दैट मेनी ज़ीरोज़ एज मेनी नंबर्स आर अंडर द बार और एज मेनी ज़ीरोज़ आर गेटिंग रिपीटेड. जितने नंबर रिपीट होते हैं हम उतने ही नंबर्स के साथ उसको उतने ही ज़ीरोज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ 3 2 दो नंबर ही रिपीट हो रहे हैं. मैं इसको 3 नंबर ले रही हूँ. 3 को मैंने 100 से ही मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने ही ज़ीरोज़ हमें लगाने होते हैं. सो दिस बिकम्स 100y, एंड अभी 2 डिजिट्स के बाद ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा 4 3, क्योंकि 2 ही डेसिमल प्लेसेस पे हमने इसको आगे लेके गए हैं. रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल बी राइटिंग एज इट इज़ 2 3 2 3 2 एंड सो ऑन. लेट इट बी 4 4 3 तक ही गया. यहाँ पे हमने 100 के साथ किया था तो 3 6 को ही लेके गए थे, 1 ऑलरेडी वहाँ पे था. यहाँ पे नंबर 0 है इसलिए 4 3 ही आपको दिख रहा होगा, थर्ड नंबर नहीं दिखेगा. 2 3 2 एज इट इज़ किया. अब क्या करना है, इन दोनों को 4 माइनस 3 माइनस कर देना है. इसमें से मैंने 100y में से y वाला माइनस करना है. पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 0.43232 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ज़रा ध्यान से, 2 3 2 3 ये वाले नंबर 0 आ रहे हैं, लेकिन दिस नंबर डेसिमल के एग्जैक्ट बाद ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अलग है. तो इसको हम ध्यान से माइनस करेंगे कैरी करके. 8 हियर वी आर लेफ्ट विथ 2 एंड 4 2.8 and here it is 99y. So basically 99y is equals to 428. पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, बाकी तो ज़ीरोज़ ही हैं, हम वी विल नॉट काउंट इट. सो y इज़ 428 ओवर, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड में आ जाएगा. सो x की वैल्यू मेरे पास 135 ओवर 99 आई थी और y की वैल्यू मेरे पास 428,990 है. सो अल्टीमेटली मुझे इनको प्लस करना था एज पर द गिवन क्वेश्चन x प्लस y. सो मैं इनको प्लस कर रही हूँ यूजिंग द LCM. LCM लेंगे 990. अभी ये हो गया आपका 1350 प्लस 428 and the answer is 1778 over 990. So this is the answer for this question. And with this our assignment gets over for chapter 1. Thanks for watching.